नमस्कार दोस्तों। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में मनाए गए बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का 23 मई 2024 को समापन समारोह हुआ। इस समापन समारोह के अवसर पर ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी और श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी ने जो संदेश दिया वो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, ताकि सभी को उनकी ऊर्जा और उनके ज्ञान का लाभ मिले। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी का संदेश। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी ने कहा, I'm so very lucky to be between two great Buddhas and to be in front of so many great Buddhas. And many Buddhas are also behind me. Eh? My dear friends, everybody say, yes, we are Buddhas. And yeah, yes, we are Buddhas. Not, yes, we are Buddhas, no. Everybody say, yes, we are Buddhas. Yes, yes, yes. Yes, we are Buddhas. அப்படி சொல்லுங்க. Buddhahood is your khel, yeah, celebration, yeah. Buddhahood means always being bold. Buddhahood means always being young, youthful. Okay. Buddhahood means committing yourself to the emancipation, betterment of the whole humanity, whole being kind. Okay. No animal requires Buddhahood, but every human being requires Buddhahood. But what an animal being requires is friendship, maitri. Animals are not to be cut and eaten. What a horrible thing. Okay. The great master Mahavir, we remember, he was the greatest symbol of ahimsa and vegetarianism. Even Buddha, he was tatastha in many occasions. He wanted to open his mouth, but Mahavir said, no, only vegetarianism. Ahimsa paramo dharmaha. Buddha was too much of a gentleman to force himself. Okay, but Mahavir was a absolutely cutthroat master. Absolutely no way. On this Buddha Purnima day, we remember the great master Mahavir. On this Buddha Purnima day, we remember all the masters of the cosmos. Okay. Buddha Purnima is not for Gautama Buddha, it is for all the Buddhas. That's what we are celebrating. It's not remembering Gautama Buddha. Gautama Buddha is one Buddha. And on this occasion, on the Buddha Purnima occasion, we remember all the Buddhas of the past, of the present, of the future. Everybody is either a past Buddha, or a present Buddha, or a future Buddha. So who is not a Buddha? Huh? You know. So, my dear friends, seeing everybody as a Buddha is Buddhahood. We see everybody as a Buddha. Future Buddha, present Buddha, past Buddha, all-time Buddha, no-time Buddha, no time, timelessness. Buddhahood means, to understand that change is permanent. Everything changes. The outer changes, the inner changes. We keep on changing inside. We are not constant inside. Our duty is for the truth. Our duty is not for ourselves or for others. Our duty is towards the truth. आज मैं इन दो बुद्ध जनों के बीच में बैठा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरे सामने इतने बुद्ध पुरुष बैठे हैं और मेरे पीछे इतने बुद्ध पुरुष बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई कहे कि हम बुद्ध हैं, जोश से कहे हम बुद्ध हैं। बहुत धीरे से ना बोलें कि हम बुद्ध हैं, नहीं, बहुत जोश से बोलें कि हम बुद्ध हैं। हाँ हाँ, हम बुद्ध हैं। बुद्ध हमेशा साहसी है,
अगर आप साहसी नहीं हैं तो आप बुद्ध नहीं हैं। बुद्धत्व एक खेल है, बुद्धत्व एक उत्सव है। यस यस वी आर बुद्धास। हाँ, हम बुद्ध हैं। यस वी आर बुद्धास। बुद्ध हमेशा साहसी है। अगर आप साहसी नहीं हैं तो आप बुद्ध नहीं हैं। बुद्धत्व एक खेल है, बुद्धत्व एक उत्सव है। बुद्ध का अर्थ है हमेशा समस्त प्राणी जाति के लिए करुणावान रहना। किसी पशु को बुद्धत्व नहीं चाहिए, पर हर मनुष्य को बुद्ध तो होना ही है। पशु जगत को क्या चाहिए? उन्हें मैत्री चाहिए, मित्रता चाहिए। जानवरों का वध करना, उन्हें मारना, उन्हें खाना, ये अत्यंत क्रूरता है। हम महान मास्टर महावीर को याद करते हैं। वह अहिंसा और शाकाहार के महान प्रतीक हैं। कुछ अवसरों पर कभी बुद्ध तटस्थ रहे, कुछ नहीं बोले, पर महावीर ने कहा नहीं, केवल शाकाहार और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। बुद्ध अत्यंत सौम्य थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए कोई दबाव नहीं डाला। लेकिन महावीर ने कहा बिल्कुल नहीं, अहिंसा परमो धर्मा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम महान मास्टर महावीर को याद करते हैं। सृष्टि के सभी महान मास्टर्स को याद करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा केवल बुद्ध के लिए नहीं है, ये सभी बुद्ध जनों के लिए है। यहाँ हम यही बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। हम केवल गौतम बुद्ध को याद नहीं कर रहे। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी बुद्ध जनों को याद करते हैं। हर वह बुद्ध जो भूतकाल में हुए हैं, हर बुद्ध जो वर्तमान में बुद्ध है, और जो भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं, हम सबको याद करते हैं। हर कोई या तो भूतकाल में बुद्ध था, या वर्तमान में बुद्ध है, या भविष्य में बुद्ध होगा। कौन बुद्ध नहीं है? हर एक को बुद्ध की तरह देखना, यही बुद्धत्व है। हर कोई बुद्ध है, चाहे वह भूतकाल में बुद्ध था, या वर्तमान में बुद्ध है, या भविष्य में बुद्ध होगा। ऑल टाइम बुद्धा, नो टाइम बुद्धा, टाइमलेस बुद्धा। बुद्ध का मतलब ये जानना कि परिवर्तन स्थायी है। हर चीज बदल रही है, बाहर और भीतर। हम अंदर से बदल रहे हैं। हमारा कर्तव्य स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति नहीं है, हमारा कर्तव्य सत्य के प्रति है। आपका कर्तव्य सत्य के प्रति है। ये था ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का संदेश। श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर इतने लोगों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। जैसा कि पत्री जी कहा करते थे, सारे बुद्ध यहाँ ध्यान करने के लिए आए हैं। ध्यान करने के लिए हमें एक स्थान चाहिए, एक स्थल चाहिए, एक संघ चाहिए, एक आश्रम चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा ने हमें ध्यान करने का एक अद्भुत अवसर दिया है। हम यहाँ से बहुत ऊर्जा और ज्ञान अर्जित करके अपने घर जाते हैं। जैसे नौकरी और व्यापार करने से धन प्राप्त होता है, वैसे ही ध्यान करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा और ज्ञान को ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। हमें इस ज्ञान को सभी में बांटना है। हम सब यहाँ 3 दिन एक परिवार की तरह बिता रहे हैं। एक दूसरे से बातें करना, आपस में ध्यान अनुभवों को साझा करना, यही असली बुद्धत्व है। प्रत्येक ध्यानी को सिर्फ यही नहीं, अपने घर जाने के पश्चात भी ऐसे ही रहना है। यहाँ से वापस घर जाने के पश्चात अगर पहले जैसे ही हो गए तो ये बुद्धत्व नहीं है। हमें अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों को अच्छाई के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अब हमें अच्छाई का पता चल गया है। हमने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में यही सीखा है, बांटते रहना और सदैव बांटते रहना। हमें पीछे की तरफ खींचने के लिए बहुत लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान मत करो, ध्यान करने से क्या लाभ है। ऐसी बातों को अनसुनी करके हमें ध्यान करते हुए और दूसरों को ध्यान सिखाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यह आनंद और मैत्री और कहीं नहीं मिलती। ऐसा ही पत्री जी को भी उनके घर वाले कहते थे, ध्यान करके क्या करोगे? जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं है वह लोग ध्यान करते हैं। उनके विचार ऐसे ही थे, परंतु ऐसा नहीं है।
योगी ही ध्यान में आते हैं। पत्री जी का ऐसा विश्वास था। उनका विश्वास कभी गलत नहीं हुआ। जब एक गुरु दृढ़ विश्वास के साथ कोई काम करता है तो वह अवश्य सफल होता है। हमारी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कोई भी हमें पीछे खींचे तो हम पर उसका प्रभाव ना पड़े। एक तालाब में अनेक मेंढक रहते थे। कुछ मेंढक बाहर निकलने का प्रयत्न करते तो नीचे वाले मेंढक कहते कि तुम कूद नहीं सकते हो, क्यों प्रयास कर रहे हो, अच्छा है यहीं रहो। कुछ मेंढक उनकी बातें सुनकर वहीं रह जाते, किंतु एक मेंढक उछलते उछलते अंत में बाहर निकल आता है। उसने अपनी मंशा को सिद्ध कर लिया। वह क्यों उछल रहा था? क्योंकि वह बहरा था। वह उन मेंढकों की बातें सुन नहीं सकता था। ऐसी बातों को सुनते समय हमें बहरा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें अनसुनी करके ही ज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अगर हम तालाब में ही रहेंगे तो वही हमारा संसार बन जाता है। कहाँ रहना है ऐसा नहीं सोचना है, हर घर हमारा है ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। पत्री जी ऐसा ही करते थे। ध्यान करने से संपूर्ण विश्व हमारा संसार बन जाता है। पत्री जी कहीं भी जाते थे, किसी के घर जाते थे, उनकी रसोई में जाकर खाना बनाकर सबको खिलाते थे। उनके अपने सगे बनकर, उनके साथ रहकर उन्हें ध्यान में लाते थे। लोग बताते हैं कि पत्री जी ने हमारे घर में खाना बनाया। पत्री जी इस कुर्सी पर बैठते थे, वे इस पलंग पर सोते थे। वे ऐसा अत्यंत आनंद के साथ मुझे बताते हैं। हमें यही चाहिए, हमें उनके जैसा बनना है। यदि मेहमानों की तरह सोफे पर बैठे रहेंगे तो मेहमान ही रहेंगे। हमें मेजबान बनना चाहिए। यदि हम उनके घर में जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, जिससे वे कभी भी भूल नहीं सकते। रसोई घर का यही महत्व है। घर में रसोई घर का एक मुख्य स्थान है। रसोई घर देवालय है जो अनेक लोगों की भूख मिटाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। माता अपने बच्चों के लिए अत्यंत प्रेम से खाना बनाती है ताकि घर में सभी स्वस्थ और संतुष्ट रहें। पत्नी पति एवं बच्चों के लिए इसी अच्छे विचार के साथ खाना बनाती है कि सभी स्वस्थ रहें। स्त्री के लिए रसोई घर एक मंदिर है। उस मंदिर को हम स्वच्छ और मातृ भाव से रखते हैं। पत्री जी औरों के घरों में पवित्रता से खाना बनाकर सबको खिलाकर फिर खाना खाते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? सभी का पेट भरना। वे इसी उद्देश्य के साथ काम करते थे और ये कोई नई बात नहीं है। पत्री जी ने यही हमें सिखाया है। हमारे लिए ये अन्नदान नया नहीं है। पत्री जी के पास जो भी ध्यान सीखने आते थे वे उन्हें पहले खाना खिलाते थे। हम पिछले 40 वर्षों से अन्नदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तब से ही प्रारंभ हुआ है जब मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। अपनी माता के घर में मैं कभी रसोई में गई ही नहीं। पत्री जी 10 लोगों को लेकर आते थे। खाना कैसे बनाना है मुझे मालूम नहीं। मैंने केवल एक ही चीज सीखी थी, तुअर दाल। जो भी आए यही बनाती थी। पत्री जी कहते थे पहले खाना खाइए फिर ध्यान करेंगे, और ये कहकर उन्हें खाना खाने के लिए अंदर भेज देते थे। घर में कुछ है या नहीं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। एक बार बिजली घर से 2 व्यक्ति हमारा बिजली का कनेक्शन काटने आए क्योंकि हमने बिल नहीं भरा था। पत्री जी ने उन्हें अंदर खाना खाने के लिए भेज दिया। खाना खाने के बाद उन्हें ध्यान करवाया और कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने अच्छे लोग हैं, हम तो यहाँ बिजली काटने आए थे, आज हम आपकी बिजली नहीं काट रहे हैं। 2 दिन में आप बिजली का बिल भर दीजिए, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। दूसरे दिन हमने बिल भर दिया। कोई भी आए पत्री जी ये नहीं पूछते थे कि वह कौन है, क्या है। उन्हें ध्यान सिखाना और भोजन कराना, बस यही देखते थे। अतिथि सत्कार के लिए 56 भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी घर पर आए पहले उन्हें भरपेट खाना खिलाइए फिर ध्यान सिखाइए। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक पुस्तक है तो उन्हें पढ़ने के लिए दीजिए। यही सही अतिथि सत्कार है। ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం ఒక్కసారి మీతో పాటు సార్ చెప్పినట్టు అదే సైగతో ఎస్ వీఆర్ బుద్ధాస్,
Yes, we are with us. Yes, we are with us. ये था स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिए गए संदेशों का हमने हिंदी अनुवाद सुना। आशा करती हूं कि इससे हमें बहुत स्पष्टता मिली होगी कि अध्यात्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है, और मैं मास्टर बुद्धिमती जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूं जिन्होंने ये सेवा की और तेलुगु संदेशों का हिंदी रूपांतरण करके हमारे तक पहुंचाया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह तेलुगु के संदेश जो भी अनुवाद हो जाएंगे आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, जरूर साझा करूंगी, ताकि सभी को ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी और श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी के ज्ञान का, ऊर्जा का लाभ मिले। नमस्कार, धन्यवाद।